Welcome to my channel, and in this video I will teach you osmoregulation in plants and osmoregulation in animals. These topics are from the chapter number 1, homeostasis. So let's start today's topic. What is osmoregulation? Osmoregulation is the process by which an organism regulates the concentration of solutes and loss and gain of water in their body. So osmoregulation in plants. Plants are divided into three types on the basis of their habitat, in which environment they are present. Number one, the plants which are present in the aquatic environment are called hydrophytes. The plants which are present in moderate terrestrial environment are called mesophytes. And the plants which are present in the severely dry terrestrial environment are called xerophytes. Let's start with hydrophytes. Hydro means water and phyton means plants, have the adaptations to remove the flooding of its cells in fresh water. In this type, the surface area of leaves is very large to transpire water excessively. Extensive stomata are present on the upper surface facing the atmosphere to promote loss of water. So basically these are those plants which are present in the aquatic environment. सो ये वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर की कमी फेस नहीं करते। इनकी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट में से आ रहा होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कम्स इनटू देयर बॉडी, they try to osmoregulate that water content into their body. So therefore they try to lose large amount of water. So when they try to transpire the water, they use large surface area leaves. इन प्लांट्स के पास बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का, और लीव्स के स्टोमेटा जो होता है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिससे वो इजीली अपने वाटर को रिमूव कर सकते हैं। Mesophytes are those plants which are present in the moderate terrestrial environment, have moderate water availability. In sufficient supply of water, stomata are kept open to promote loss of water. ये जो plants हैं इनके पास भी जो stomata होंगे इनके upper surface पे present होंगे, लेकिन अगर sufficient supply आ रहा है water का तो ये अपने stomata को open रखेंगे ताकि excess water जो है वो body से loss हो जाए। स्टोमेटा जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट है। और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर का, कम पानी है इनकी बॉडी के अंदर, तो ये उन स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ऑफ द मीजोफाइट्स आर ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। Number third is xerophytes. Xerophytes are those plants which are present in the desert areas. Example, cactus and aloe vera. ये वो प्लांट्स हैं जो कि ऐसी एडेप्टेशन करते हैं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इनकी बॉडी से लॉस हो, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो एयर है वो बहुत ड्राई होती है और जो सॉइल होता है वो भी बहुत ड्राई होता है। बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, तो जो बॉडी के अंदर वाटर होता है वो ये प्लांट्स चाहते हैं कि ये उस वाटर को कंजर्व करके रखें। कंजर्व करने के क्या तरीके हैं कि स्टोमेटा लीव्स जो होंगे, उनके जो स्टोमेटा होंगे वो लीव की अपर सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होंगे, ये अडेप्ट ऐसे करेंगे कि स्टोमेटा इनकी लीव्स की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हो। नंबर सेकंड चीज़ ये क्या करेंगे कि इनकी जो कवरिंग होगी, बॉडी जो कवर होगी वो क्यूटिकल से कवर होगी, थिक वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल होगी जो कि प्रिवेंट करेगी वाटर के लॉस को। नंबर थर्ड, ये क्या करेंगे कि लीव्स को कन्वर्ट कर देंगे स्पाइन्स में। लीव्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, स्पाइन्स बहुत छोटे कांटे होते हैं, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम वाटर लॉस होगा। नंबर फोर्थ, ये करेंगे अपनी लीव्स को शेड कर देंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे ताकि बिल्कुल भी पानी लॉस ना हो। और फिर जो फोटोसिंथेटिक का जो फंक्शन है जो लीव्स परफॉर्म कर रही होती हैं वो फंक्शन अडेप्ट कर लेगा कौन? स्टेम्स अडेप्ट कर लेंगे, और स्टेम्स फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन काम करेंगे। Xerophytes have the adaptations for reduced rate of transpiration. Many xerophytes possess small, thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to the volume. Their cuticle is thick, waxy, and leathery. Stomata are on the lower surface of leaves and located in depression. Some are cacti. During the driest season, shed their leaves to restrict transpiration completely. Thus, the stems are photosynthetic organs. In rainy season, stem stores water for use in dry conditions. जो मैंने आपको अभी उर्दू में जो चीज़ें बताई हैं वही इस पैराग्राफ में लिखी हुई है।
मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ इन्होंने डायग्राम शो की हुई। ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज हाइड्रोफाइट्स, ब्रासिका है ये। ऑन द लेफ्ट राइट साइड दे आर शोइंग दिस इज कैक्टस। कैक्टस में आप देखते हैं स्टेम इतना थिक है इनका, इसके अंदर वाटर कंजर्व हुआ हुआ है, वाटर इन्होंने बचा के रखा हुआ है, और लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। Moving forward, osmoregulation in plants, in animals, sorry. So osmoregulation in animals. Basically animals में osmoregulation in marine animals, osmoregulation in freshwater animals and osmoregulation in terrestrial हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हुई इन्होंने ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में बताई हुई है। ऑस्मो कन्फर्मर्स आर दोज मरीन एनिमल्स which maintain their internal environment isotonic with the external environment. Therefore, the osmotic pressure inside of their body is equal to the osmotic pressure in the outside environment. जब आइसोटोनिक होगा इनका एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट आउटसाइड के एनवायरनमेंट के साथ, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट्स नहीं होगी, आइसोटोनिक रहेगा, मतलब बैलेंस रहेगा। नंबर सेकंड जो है ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। वो ऑस्मो रेगुलेटर्स एग्जांपल मरीन एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिनको वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करना पड़ता है इनकी अपनी बॉडी के अंदर, उनको पढ़ते हैं आगे। Animal cells require more critical balance of water and solutes in the body as they cannot survive a net water gain or water loss. Animal की जो बॉडी होती है उसको बैलेंस रखना पड़ता है अपने वाटर और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है जो एनिमल्स और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, हम लोग नेट वाटर गेन या नेट वाटर लॉस को में सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें बैलेंस चाहिए वाटर का और सॉल्यूट का अपनी बॉडी के अंदर। Water continuously leaves and enters the cells. However, the quantity of water and solutes is kept in balance. There are two approaches in maintaining this balance. दो approaches, एक osmoconformers होते हैं और एक osmoregulators होते हैं। Animal body fluids are kept isotonic to the external environment. Even for marine saltwater environment, these animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic state, are known as osmoconformers. वो एनिमल्स जिनका बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो आइसोटोनिक है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। मूविंग फॉरवर्ड, ऑस्मो कन्फर्मर्स की डेफिनेशन है। Moving forward, the animals whose body fluid concentrations differ noticeably, the outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salts in hypertonic conditions, therefore are called osmoregulators. ये पैराग्राफ थोड़ा सा रफ है, इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यूज़ कर रही हूँ। मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन होती है। सो in the top diagram they are showing, टॉप फिगर जो है ये, यहाँ पे ये लोग फ्रेश वाटर फिश को शो कर रहे हैं और बॉटम पे जो है मरीन वाटर फिश है। जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इज सॉल्टी, हाइपरटोनिक देन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर जो है इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, और वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एंड लोअर कंसंट्रेशन। जब बॉडी के अंदर वाटर कम होगा तो इन्वायरमेंट में जो वाटर है उसमें से वाटर बॉडी के अंदर आएगा, एक्टिवली वाटर अंदर आएगा। ये ब्लू एरो शो कर रहा है एक्टिवली वाटर अंदर आ रहा है इनकी बॉडी के अंदर। ये क्योंकि एक्टिवली जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी बॉडी के अंदर तो एक्टिवली वाटर अंदर आएगा। सो ये ड्रिंक जो है लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर करते हैं क्योंकि वैसे ही बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आता है तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूट यूरिन। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेंगे ये। नंबर सेकंड जो है मरीन वाटर एनिमल, मरीन वाटर फिशेज है। मरीन वाटर फिशेज का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो लेस सॉल्टी होता है, दैट मीन्स हाइपोटोनिक होता है एज कम्पेयर टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
मतलब यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर कम है, वाटर ज़्यादा है, तो बाहर जो है वाटर कम होगा। जब बॉडी बॉडी हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वाटर जो है वो एक्टिवली मूव करेगा फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। वाटर मूव कर रहा है इनसाइड टू द आउटसाइड, ब्लू एरोज जो शो कर रहे हैं। जब वाटर बहुत ज़्यादा मूव करेगा बॉडी से बाहर, तो ये ड्रिंक करेंगे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर को ड्रिंक भी करेंगे, तो उसके साथ साथ सॉल्यूट जो बॉडी के अंदर आएंगे। तो जब ड्रिंक करेंगे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये एम्पल अमाउंट ऑफ जब वाटर ड्रिंक करेंगे तो इसके साथ सॉल्यूट भी बॉडी के अंदर आएगा। जब सॉल्यूट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा इनके अंदर, तो ये क्या करेंगे, बॉडी, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा था, तो ये बॉडी के अंदर, क्योंकि हाइपोटोनिक था बाहर अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर के एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, बाहर के एनवायरनमेंट में पानी कम है, तो इन्होंने वाटर मूव करा अंदर से बाहर की तरफ। तो ये उसको अपनी बॉडी के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये एक्सक्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, ऐसी यूरिन जिसके अंदर पानी कम हो, ताकि बॉडी के अंदर पानी रहे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी से पानी लॉस हो रहा है बिकॉज हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। दिस इज a very rough topic and very difficult. I have tried to make it easy. So अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही, you can ask me in the comment section. अब ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स पढ़ लेते हैं। मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। ज़्यादातर जो मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, मतलब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है इनका, isotonic environment with the external environment. Among the vertebrates, hagfishes are isotonic. Hagfishes isotonic होती हैं with the surrounding seas water. Most cartilaginous fishes maintain lower internal salt concentration than that of seas water. जब मैं बता चुकी हूँ, जो cartilaginous fishes होती हैं उनके अंदर salt concentration body के अंदर कम होती है than that of the seas water. जब salt concentration body के अंदर कम होगी तो मतलब body के अंदर पानी ज़्यादा है, तो मतलब body hypotonic है as compared to external environment. देयर किडनीज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। किडनीज क्या करती हैं इनकी, एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट्स थ्रू गिल्स एंड ऑल्सो पजेस सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स सच एज रेक्टल ग्लैंड्स। जब ये ड्रिंक करते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, तो इनके उसके साथ साथ सॉल्ट भी बहुत सारा बॉडी के अंदर आता है, तो उस सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए वो गिल्स यूज़ करते हैं और रेक्टल ग्लैंड्स को यूज़ किया जाता है। दीज एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। Some fishes have relatively low salts in the body fluids, but have rendered these hypertonic to that of seawater by retaining urea in adequate concentration. Because urea in high concentration is damaging, so these fishes retain another chemical, trimethylamine oxide, for protection against urea. अगर यूरिया इनकी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में होगा तो वो टॉक्सिक होता है, तो वो यूरिया को चेंज करके ट्राईमिथाइलमाइन की फॉर्म में अपनी बॉडी में रिटेन करके रखते हैं। बोनी फिशेज द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स बट लेटर बिकम मरीन कॉन्स्टेंटली लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। मैं बता चुकी हूँ कि बॉडी जो सीज वाटर मरीन जो फिशेज हैं उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। These fishes have adapted themselves to drink large amounts of seawater and excrete concentrated urine. क्योंकि देखें जो हाइपोटोनिक अंदर का एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, उसका मतलब होता है कि पानी बाहर जाएगा बॉडी से। जब पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर जा रहा होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए दो चीज़ें करेगा बॉडी, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करेगा, या तो फिर जो एक्सक्रीट करेगा कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करेगा ताकि बॉडी के अंदर वाटर रहे। Concentrated urine resulting in maximum salt excretion and minimum water loss. ये भी इन्होंने मरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स ही शो किए हुए हैं यहाँ पर। मरीन वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जा रहा है और ये कंसनट्रेटेड यूरिन निकाल रहे हैं, और फ्रेश वाटर के अंदर हाइपरटोनिक है तो अंदर आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी। Freshwater animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluids and loss of salts. Freshwater protozoa, amoeba, and paramecium pump out excess water by structures contractile vacuoles. Many freshwater animals, including fishes, remove excess water by producing large volumes of very dilute urine. क्योंकि इनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो बहुत ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर आ रहा है। अब जब एक्सेसिव पानी बॉडी के अंदर होगा, वाटर जब एक्सेसिव होगा बॉडी के अंदर, तो दो मैकेनिज्म होंगे कि ड्रिंक कम किया जाए पानी को, और नंबर सेकंड चीज़ ये है कि डाइल्यूट यूरिन बॉडी से निकाला जाए। द लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग
फूड, ऐसे फूड लेंगे जिसमें सॉल्ट हो, एंड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन, और सॉल्ट्स को गिल्स और स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर लेंगे। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाते टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, तो वो अडेप्टेशन उनकी नहीं हो पाती टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो टेरेस्ट्रियल नहीं है। दो हैं हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि कंप्लीटली और सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल हैं। उसके अंदर हमारे पास आर्थ्रोपोड्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स आते हैं। आर्थ्रोपोड्स इसके अंदर इंसेक्ट्स आ गए, कॉकरोचेस आ गए, आर्थ्रोपोड फाइलम जो है, और vertebrates हैं। The evaporative loss of water leading to dehydration is the major problem for terrestrial life. Dehydration is the major problem from terrestrial life, क्योंकि वाटर का कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट ड्राई है और बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो डिहाइड्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. Arthropods and vertebrates have successfully adapted to terrestrial mode of life. Terrestrial animals are covered by body surface which prevents loss of water as the waxy exoskeleton of insects and multi-layered dead keratinized skin cells of most terrestrial vertebrates. जो वाटर के लॉस को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रिवेंट करते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके पास एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है जो कि उनके वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, वो क्या करते हैं, उनके पास मल्टी लेयर्ड डेड कैरेटिनाइज स्किन सेल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस को। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, उसके अलावा वाटर के लॉस को किस तरह प्रिवेंट किया जा रहा है? एक, exoskeleton in insects and dead keratinized skin in vertebrates. Number second, drinking and eating of moist foods. Moist food अपनी डाइट के अंदर लेना जिसके अंदर वाटर हो, compensate the loss of water. These animals also have metabolic and behavioral adaptations. वाटर मेटाबॉलिज्म करना, ऐसे ब्रेक डाउन करना प्रोटीन को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और वाटर बने जिससे। Behavioral adaptations. Some desert animals, example kangaroo, rat survives without drinking water by feeding on seeds of desert plants containing more carbohydrates. अब यहाँ पे इन्होंने एक कैंगरू की एग्जाम्पल दी हुई है जो कि टेरेस्ट्रियल है। अब वो किस तरह सर्वाइव करता है? वो ड्रिंक नहीं करता लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर भी वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि वो फीड करता है, अपनी डाइट में क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट, सीड्स लेता है। ऐसी सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेता है सीड से। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या फ़ायदा है? जब कार्बोहाइड्रेट को लेगा तो बॉडी के अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के एक्सेसिव कंसंट्रेशन में नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा वाटर जो है, वाटर चाहिए था टेरेस्ट्रियल में रहने के लिए, वाटर चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से वाटर मिल जाएगा, विच प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेट यूरिन, उसके अलावा वो हम लोग कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं इन देयर किडनीज दैट रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. Terrestrial animals can tolerate dehydration and it differs in various animals. This characteristic is known as anhydrobiosis. What is anhydrobiosis? Anhydrobiosis is a process in which organisms become dry and dormant until conditions become favorable. For example कि बहुत ड्राई कंडीशन है, अब इन्वायरमेंट उस ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है? अपने अंदर एडेप्टेशन लेकर आता है और एक प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं एनहाइड्रोबियोसिस. एनहाइड्रोबियोसिस में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्राई हो जाएगा, डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब अंटिल जब तक कि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल ना हो जाए. और एनहाइड्रोबियोसिस कौन से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है? कुछ यीस्ट के अंदर, नेमाटोड्स के अंदर देखी जाती है एनहाइड्रोबियोसिस. सो आज का टॉपिक यहीं तक था. कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आगे भी मैं बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी. अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.